Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to this another episode of The Secret Shed. I have with me my friend Sachin Pranjpe. Uh, we both graduated from IIT Roorkee, and Tata Steel happens to be the first job for both of us. Sachin chose to, so basically after Tata Steel, we chose different path, and he chose to serve our nation by joining Teach for India, where he spent close to 7 years of his life. He has also contributed towards Diksha, which is a digital education platform initiated by Government of India, leading the implementation across the state of Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh. After that, he went on to study product management from the prestigious Carnegie Mellon University and currently works as a product manager at Walmart. Clearly, Sachin has a variety of experience in his career so far. And while we were chatting a few weeks ago, we realized how society and systems around us is making it difficult for us to figure out what we actually want in life. And how can we actually find what is the true meaning, the true calling for us is what we would want to explore in this discussion at a certain level, how we can probably escape the matrix. Uh, so with that, welcome to the podcast, Sachin. Thank you. Thank you. Thanks a lot. And yeah, thanks for inviting me. I'm very excited. Thanks for that grand introduction. I think I don't I I was like कि किसकी बात कर रहा है? So, but yeah, thanks a lot. Very glad to be here. Um, yeah, we go a long No, back. no, 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 So no. A pleasure, Sachin. I think it's good connecting with you after a long time. How is San Francisco weather? How is it today there? it's very nice for a change. We have been having a lot of clouds and rains, but today looks quite clear. Actually, I am sitting in front of the window as you Okay. so as we discussed, yeah. So it's looking good. Yeah, It's it's nice and it is cold looking good, actually. bright and sunny there Yeah. in San Francisco. So, Yep. Sachin, before we jump into the podcast, I think very curious. I was going through your LinkedIn profile, and you were saying that Uber rating of what 4.94. What is that Uber rating? I think, I mean, see, I think you will see this on LinkedIn quite often, that people have like a way of putting stuff on their profile where, and majority of time it is like all the great colleges you have gone to separated by those lines. So I started feeling very distanced from general way we have been educated, right? Like all this, go to this college, go to that college, network. So I thought like one, I feel that distaste. Two, LinkedIn is the primary place, right? Like where you have all these uh, names and people trying to and for me it became like, I don't know. So it is in a way my revolt on the on the popular culture is like that doesn't matter. And like for me, Uber rating signifies a lot. I think there is a post as well where I say, like, like after a long day, talking to a lot of different people in your cab, also going through a lot of traffic, this that, if someone is able to hold a nice conversation with you, right, that that tells you a lot about the person, right? It's not easy. I Yeah, yeah. won't be. I mean, it is so hard to be nice to like two people sometimes, right? Like you are having a bad day, but think about their job. And I thought, like, not just Uber driver, but all the service providers in our country, right, deserve that kind of respect. So if someone is getting consistently 4.9, 4.9 plus rating from their customers who are interacting with this person for 15 minutes, it says a lot about that person. And I Yeah, felt yeah. like it is such a great indicator of um, sometimes, like how nice you are to people probably. And that's why I said like Uber rating is sometimes more reliable than than many other That, metrics in which we measure uh, that- people. yeah, yeah.
So Sachin, have you been? I think the way you're sort of putting Uber rating of 4.94 and what's probably your revolt against the system. Have you been like this, like from your early age itself? I mean, how was your life growing up? Where did you grow up? And is it Yeah. something that you sort of inculcated as you sort of moved across life, or was it something you sort of are able to connect looking backwards in your early childhood as well? नहीं, 100% कहीं अर्ली चाइल्डहुड से ही आया है। मेरी मम्मी हिंदी टीचर रही हैं बहुत, like 40 years, राइट। एंड जब छोटे थे तो इंग्लिश का तो बिल्कुल ही चलन नहीं था। मध्य प्रदेश महू में रह के वहां पे आप इंग्लिश बोलो तो हंसी उड़ जाती थी, राइट, कि देखो ये अंग्रेजी बोल रहा है आज। तो इट वाज लाइक दैट काइंड ऑफ सिस्टम। बट वहां पे अगर मम्मी हिंदी टीचर है तो बहुत फायदा मिला उसका, क्योंकि बहुत हमको डिबेट्स डिस्कशंस वहां पे मंच पे खड़े होके कुछ बोलना, कविता बोलो, ऐसा करो वैसा करो, तो बड़ा मजा आता था। मतलब बहुत ही अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट ऐसा था कि जब तुम उस उम्र में 8वीं 9वीं कक्षा में बड़े भरे मंच, मतलब मंच पे खड़े होकर आप भरी सभा में लोगों से तालियां बजवा लो, राइट। सो दैट Yeah, फॉर अ 12 year 13 year old बॉय इज अ ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्टर। तो yeah, yeah. वो हमेशा वो एक आर्ग्यूमेंटेटिव होने का एक वो तो रहा ही है, और मुझे लगता है वो इंडिया में हर कल्चर में है। आप देखिए हमारे कितनी सारी लैंग्वेजेस में, सारे कल्चरल ट्रेडिशंस में आर्ग्यूमेंटेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मी के हिंदी टीचर होने का एक बहुत बड़ा फायदा मुझे मिला कि पहले तो ये आर्ग्यूमेंटेशन के लिए कॉन्फिडेंस फील होना शुरू हुआ। ऐसा नहीं था कि नॉलेज अच्छी थी, देखिए नॉलेज तो अभी भी अच्छी नहीं है इतनी, पर एक जैसे बोलते हैं ना कि यार क्यों, मतलब क्वेश्चन जो एक पूछने वाला वो होता है। आई थिंक कॉलेज में भी वही किया उस कारण से। और ऐसा नहीं है कि हर बार इस आर्ग्यूमेंटेशन का फायदा ही हुआ है ना। इस आर्ग्यूमेंटेशन के बहुत नुकसान भी झेलने को मिलते हैं। तुमको लोग दिमाग खराब कहते हैं, तुमको मतलब पीपल थिंक यार तू क्या, मतलब क्या है ये कुछ, मतलब क्यों ऐसा करना है, राइट, लाइक सो you always have to pay some price for it, but I feel like it makes life a little fun कि थोड़ा सा आपको पुश करके देखना होता है कि यार So, ये जो दिख रहा है इसको कैसे पुश कर सकते हैं। no, no, I know, I agree. I think, मतलब जिस तरह से system designed है, yeah, the हम्म। way it is designed is that it encourages us to not ask questions and just हाँ, follow whatever protocol and whatever systems have been put across. Like give ये चार बिल्कुल चीजें पढ़ लो and give that exam and बिल्कुल go for this job and go for this college. We are sort of बिल्कुल। inculcated not to ask questions, and when you ask questions, is when you start uh, getting a lot of answer, getting to know हाँ, yourself better, getting to know the world much better. So करेक्ट, quite interesting that you had this while growing up itself. 100। But how was या, how was your how was your uh, yeah? So again, coming back to the early life, how was it, and what made you get into IIT? Like, what was the motivation to get into IIT, and how were you able to get into it? I mean, just a brief summary of how was हाँ that process looking like? Yeah. यार बहुत टफ था। मतलब ऑनेस्टली हम लोगों की आर्थिक परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी उस समय, है ना, ग्रोइंग अप। एंड जो आसपास था, मतलब हमारे यहाँ ऐसा था कि मैं पहला लड़का था उस कम्युनिटी में जो 11वीं के आगे पढ़ा था। है ना। Okay. मतलब मेरे मम्मी पापा तो थे, बट लड़कों की बात यूथ में जैसे कहते हैं ना, Okay. तो बड़ा मतलब ऐसी जगह पे, है ना। और अभी भी याद आता है, मजा आता है सोचने में, काफी नॉस्टैल्जिया तो है ही। पर उसमें बैठ के एक चीज तुमको समझ में आ जाती है कि यार ब्रो यहाँ तो मतलब नहीं हो पाएगा। मतलब अगर तुझे एक्चुअली, और फिर कुछ आदर्श भी होते हैं तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे थोड़ा कहीं और दीदी भैया वगैरह के बारे में बातें होती रहती है। तो मुझे भी लगता है ऐसे कि कुछ इन्फ्लुएंसेस, प्लस मम्मी टीचर हैं इतने छोटे शहर में, एक्चुअली आप किसी प्रोमिनेंट स्कूल में टीचर हो तो आप बहुत ज्यादा, मतलब आप पे वैसे ही लोगों की निगाह होती है। जैसे बोलते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, है ना। तो पूरे Yeah. Yeah. गांव का योगदान है उसमें कि लोगों की नजर भी आप पे रहती है, लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, है ना। तो शुरू में वो इम्पेटस जरूरी होता है, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार शायद मैं पढ़ पढ़ा के ठीक ठाक काम बन जाएगा। तो फिर वो एक डिपेंडेंसी आ जाती है। दूसरा मुझे समझ में आ गया था कि यार ये ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम्स मेरे से हो नहीं पाते हैं ढंग से।
राइट, लाइक जो ABCD होते हैं उसमें मेरी बहुत वाट लगती थी। मतलब मेरी AI ट्रिपल में अभी भी मुझे याद है, शायद पीछे रैंक थी, मतलब IIT में आगे थी, AI ट्रिपल में पीछे थी, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता, पता नहीं अभी भी लगता है इनफैक्ट। तो एक दिमाग में ये समझ में आ गया था कि ब्रो ये नहीं किया तो कहीं नहीं होने वाला है, मतलब बहुत फाइट होने वाली है और हालत अपनी भी अच्छी नहीं है घर पे, तो कर लो। तो किया, और वही कि बस में बैठ के जाते थे, इंदौर में ही होती थी एक कोचिंग, कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन होता नहीं था, फोन होते नहीं थे, राइट, हमारे टाइम तो आ ही रहे थे बस मोबाइल फोन, राइट, सो Yeah. दे वर जस्ट कमिंग इन, सो एंड दैट पुश्ड मी, एंड दैट इज देन एक बार वो लग जाता है, कुछ साथी मिल जाते हैं, जैसे महू में से उस साल हम 4-5 लोगों का अच्छा ग्रुप था, मोहित ढोली, अनूप मकवाना, ऑल फ्रॉम आवर बैच, उत्कर्ष Okay. दुबे, ऑल ऑफ देम फ्रॉम सिमिलर रीजन, तुम तीन तो महू से ही Okay. थे। तो Okay. हाँ, बस फिर वे निकल पड़े वहां पे, तो यही था, मतलब डर थी, मजबूरी थी, ऑनेस्टली, लाइक बहुत बहुत ही क्लियर समझ में आता है अभी कभी कभी। So मतलब मोटिवेशन ये था कि किस तरह से एटलीस्ट मतलब एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ से फाइनेंशियल स्ट्रगल तो खत्म हो जाए लाइफ के। हाँ यार, 100%, 100%, मतलब कहानियां सुनते थे ना कि यार वो भैया अभी अमेरिका में पढ़ रहे हैं और उनकी तो इतने की सैलरी लग गई, तब ये सब कन्वर्जन पर, लाइक प्राइसिंग पावर पैरिटी, ये सब कुछ पता नहीं था, है ना, पैरिटी होती है, कुछ पता नहीं था, लगता था अरे वाह यार वहां चले गए, ऐसा ऐसा करते, कैसे करा इन्होंने, तो फिर पता लगता था इन्होंने तो कोई इंजीनियरिंग करी हुई। तो वो एक जो तुम्हारा आदर्श ही वैसा सेट हो जाता है, एंड ऑनेस्टली आई वाज वेरी लकी यार, मुझे हमेशा लकी फील होता है यार, तुमको किसी टीचर ने कुछ पढ़ाया और तुमको पहली दूसरी बार में समझ में आ गया, और तुम्हारे पास घर जाकर होमवर्क करने की सुविधा थी, माहौल था, तुम्हारे पास आसपास एनकरेजमेंट मिल रहा है, तो भाई आप लकी ही हो ना, आपने अपना क्या किया ऐसा खास। नहीं ऑनेस्टली, मतलब फील Yeah. होता है कभी कभी कि क्या किया यार, 1-2 नंबर इधर उधर हो जाते, पीछे हो जाते, है ना, ये सब तो बहुत बहुत पीछे देखो तो बहुत अच्छा ग्रैटिट्यूड फील होता है ऑनेस्टली, कि यार लकी थे, निकल गए, और फिर ऑफ कोर्स बड़ी आशाएं मंशाएं लेके हर कोई निकलता है अपनी अपनी, तो वो तो था ही कि कुछ करेंगे, अच्छा पता नहीं तो करा बहुत साल तो हो गए। तो आईआईटी में जाने का तो आई थिंक मोटिवेशन, आई थिंक मेरा प्रतिवेश भी ऐसा ही था कि मतलब ग्रोइंग अप था कि या तो डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर बन जाओ, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हाँ बिहार में। अगर तुम बड़े हो रहे हो और थोड़े स्मार्ट हो तो लोग बोलेंगे यार कि आईएएस पे निकाल लो। आज आज भी आईएएस मुझे लोग निकालो, बोलते हैं, हाँ आज एग्जैक्टली। भी आज भी मुझे लोग बोलते हैं कि यार कि तुमने यूपीएससी क्यों नहीं दिया। मैंने कहा हाँ। सही तो है। सो लेकिन जब ये गोल था कि अब आईआईटी में जाओ और आईआईटी में जा करके यू एटलीस्ट गेट अ जॉब एंड हैव सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड जब आप चले जाते हो आईआईटी में यू रियलाइज कि यू आर देयर, हम्म, then then you start exploring different things in IIT. So how, यस, अगर अगर IIT के बारे में पूछूं, like in that 4 years, मतलब how has IIT changed you? Has IIT changed you, and how has it changed you? अरे 100%, मतलब मुझे लगता है कि द सिंगल इम्पैक्टफुल फैक्टर इन माई ट्रैजेक्टरी, मैं तो बोला ही ना, मैं तो खा ही उसी का रहा हूँ। मतलब जो कुछ उन 4 सालों में मिला, जो कुछ मिला, भले ही एकेडमिक्स में, तुमको पता है एकेडमिक्स में तो मैं कोई इतना अच्छा था भी नहीं, मेरा पता नहीं सब जगह अलग अलग जगह डिस्ट्रैक्शंस हुए पूरे लाइफ, मतलब वहां पे भी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं कॉलेज में, मुझे ऐसा अगर दिखाने के लिए कोई पूछे तो कुछ है नहीं मेरे पास कि यार क्या है, क्या किया, कुछ होगा एक दो सर्टिफिकेट, पर जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बहुत शेप हो जाता है, मुझे लगता है आप, क्योंकि आप इतनी वैरायटी ऑफ कलीग्स देखते हो ना यार, आप इतने वैरायटी देख रहे होते हो वहां पे, अलग अलग देश दुनिया से आने वाले लोग, मतलब रीजन से आने वाले लोग, उनकी अलग सोच, अलग इकोनॉमिक स्ट्राटा, उनके अलग लाइफस्टाइल्स, उनके अलग लाइफ चॉइसेस, मतलब अब अगर अपन अपने आईआईटी सीनियर जूनियर बैचेस में छाने ने निकले अभी, तो Yeah, क्या नहीं पता चलता, कोई राइटर बन रहा है, कोई गौरव सोलंकी है जैसे, है ना, yeah, अभी मेरे को बिलीव नहीं होता, मतलब आई नेवर हैड अ चांस टू इंटरेक्ट विद गौरव एज मच at that time, but now you realize like wow man, like what a life choice, what a great thing to do, right? And अभी मैं नीलेश का इंटरव्यू, योर पॉडकास्ट, आई वाज लिसनिंग टू इट, आई वाज लाइक वाओ, लुक एट दैट, yeah, राइट, सो of course there are like these very
outstanding stories which get more attention. But I feel like on a granular level, IIT offers such a rich life in terms of perspective, right? सत्यनारायण ओलेकर फ्रॉम, मेरे को हमेशा उसके रीडिंग हैबिट्स के बारे में हमेशा तौसीफ, राइट? यू गेट इंस्पायर्ड बाय, आई वाज लाइक दिस स्मॉल टाउन गाय मैन, इट्स लाइक पता ही नहीं था मेरे को कि लाइफ में ऐसा भी होता है, राइट? सब एवरीथिंग इज फ्री. Those are the kind of things, and on top of that there is so much attention and फालतू का सम्मान. फालतू का मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आईआईटी जाके तुम स्मार्ट नहीं बन जाते, राइट? लाइक तुम वहां पे एक एग्जाम के बेसिस पे गए हो, that says something about you but not everything. बट तुम्हारे में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मेरे को तो कम से कम वो कॉन्फिडेंस जरूरी तो होता है यार यूथ में, है ना? कि यूथ में तुमको वो चाहिए थोड़ा आगे जाने के लिए, और उसके बाद अगर तुम्हारे में तुमको समझ में आने लगता है जब ठोकरे खाते हो. बट आई थिंक फॉर मी that is what IIT did. It gave me so much perspective, so much richness of what all is possible, and I think it set me in that completely agree. I think I have the same experience going to IIT ki I think when you're around people with different economic backgrounds and different way of studying and different way of living life and different life choices, I think it just opens up your horizon. Like आप एकदम ऐसे वो जो होता है ना, वो एक फ्रॉग है जो कुएं का मेंढक, तो कुएं का मेंढक like me myself growing up in Bihar, मुझे फील होता है कुएं का मेंढक था. I had a different way of looking at the world, and then when I went to IIT I was like अच्छा ऐसे भी होता है. एक रात पहले 8 घंटे पढ़ के भी लोग एग्जाम निकाल लेते हैं, ऐसा भी होता है. ये तो पता ही नहीं था मुझे. No, 100%, and more importantly all bound by same lifestyle. मुझे वो बहुत अच्छा लगता था. Yes. कि हम सब एक ही टाइप के रूम्स में रहते हैं. वो उससे एक लेवल ऑफ पैरिटी आ जाती है तुम्हारे. जैसे वो होता है ना कि यार तुम जब क्लास में बच्चों से टॉफियां बंटवाई जाती है तो तुम देखोगे कि किन्हीं स्कूल में वो बांटने का भी कंपटीशन हो जाता है, कौन बड़ी ला रहा है ना? तो अब उसमें क्या है ना कि बच्चों को बार बार अपने बर्थडे वाले दिन भी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन का एहसास हो रहा है. कॉलेज में वो मौके नहीं थे. जाओगे कहाँ यार, ज्यादा से ज्यादा कैंटीन जाओगे, कितना खर्च करना है. So I'm, that also was important कि यार तुम सबके साथ सेम लेवल पे बात कर पा रहे हो. समथिंग दैट वाज नॉट एक्सेसिबल टू यू इज नाउ एक्सेसिबल टू यू, एंड व्हिच यू प्रॉब्ली वुडंट हैव गॉटन अ चांस. यार नहीं चांस मिलता मेरे को महू में रह के तो शायद ना हो पाता, है ना? तो किस्मत अच्छी थी. मुझे थॉमसन में मुझे रियलाइज हुआ था कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ. Which place is this? Exactly. So it's तो Sachin, maybe moving on, right? तो हम दोनों टाटा स्टील में गए. Of course, we moved out of Tata Steel and chose different career. आप Teach for India आपने join किया. So having like a comfortable salary, what you was, I mean, while growing up, that was one of the reasons, right, to get into IIT. And now that you have that money, that comfortable job, or वहाँ पे I think we are mechanical engineers, so generally career set at Tata Steel में. Now leaving that job and going to Teach for India to educate the kids of India, it's a very different thought. वो transition कैसे हुआ? वो call आपने कैसे लिया और क्यों लिया? Like just talk a little bit about it. हाँ यार, मतलब यार एक तो मतलब ऐसे पहले मुझे लगता था कि देयर हैज टू बी समथिंग इंस्पिरेशनल बिहाइंड दिस, राइट? लाइक कि सब लोगों को लगता है कि यार ऐसा क्या हो गया. पर आई थिंक इट वाज अ कॉम्बिनेशन. थोड़ा सा मैं जमशेदपुर में ही बहुत थोड़ा सा इस तरफ अलाइंड होने लग गया था, राइट? कि लोगों को जाके कुछ पेपर बैग्स बनाना सिखा रहा था उस जमाने में, कुछ थोड़ा बहुत कर रहा था. और थोड़ा जैसे मैंने कहा कि थोड़े तो क्रांतिकारी वैसे ही दिमाग में से ही थे, है ना? तो ये लाइफ समझ में आती नहीं थी. प्लस मीरियाड ऑफ ऑप्शंस ट्राई कर रहा था. बड़ा कंफ्यूज था, बहुत कंफ्यूज था. जैसे थोड़े दिन 3 महीना वहां जमशेदपुर में यूपीएससी की कोचिंग भी गया हूं, ठीक है? साक्षी में था वो उनका कोचिंग. और it was a funny 3 month, but did it just to try it out.
एंड वो कैट का तो हमेशा ही बोलबाला रहता है, सारे जो इंजीनियर्स होते हैं पहले 2-3 साल पता नहीं उनको पूरी दुनिया ही कैट करने के लिए कह रही होती है ना, कि भाई कैट कर लो कैट कर लो, तो वो कैट का भी वो बकवास तो करी थी। मतलब मेरे हिसाब से यार, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बकवास, आई कुडंट डू इट, लेट मी पुट इट इन दैट वे यार, मेरे से ना हो पाया है ना, मेरे से ना हो पाया, दैट्स हाउ आई विल पुट इट। तो वो था, और फिर ये था कि यार कुछ देश के लिए करना है, वो भी एक दिमाग में चलते रहे। और चौथा था कि ब्रो देख कैट वैट तो नहीं होगा, तू जीमैट कर ले। Okay. तो वो जीमैट भी दे के रख लिया था। मतलब बड़ा कंफ्यूज, आप समझ ही रहे हो है ना, कि बहुत Yes. कंफ्यूज। Yeah. एंड आई थिंक इन दैट कंफ्यूजन कि यार टीच फॉर इंडिया के बाद जीमैट की एप्लीकेशन लिख के अपन निकल पड़ेंगे, अपना लाइफ सेट हो जाएगा। बहुत लोग करते हैं आजकल कि मैन्युफैक्चरिंग भी है तुम्हारे रेज्यूमे पे, अब ये भी आ गया और आईआईटी तो है ही, तो हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला लेके अपन निकल पड़े, और उस चक्कर में टीच फॉर इंडिया कर लिया। और बहुत बार टीच फॉर इंडिया में कहा जाता है, जो अंदर फेलोज आते हैं, कि भाई दिस इज द टफेस्ट वे टू इम्प्रूव योर रेज्यूमे। है ना, क्योंकि बड़ी यू आर पुट राइट इनटू द मिडिल ऑफ इट। आप सीधे जाकर एक म्यूनिसिपल स्कूल में, मेरी केस में चौथी और पांचवी के बच्चों को पढ़ा रहे हो, एंड यू आर नाउ द पार्ट ऑफ दैट डे टू डे मझधार ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल। मझधार मतलब दर्शकों के लिए इट्स लाइक टर्ब्यूलेंस, है ना। तो आप उस टर्ब्यूलेंस का डे टू डे पार्ट है। अब आपको एक्चुअली समझ में पहली बार आता है कि यार एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर की लाइफ बड़ी सम्मानजनक होनी चाहिए। वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे, और उसके लिए उनको रिटर्न में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। दबाव मिलता है, भय मिलता है, डर मिलता है ना वो। और उस माहौल में भी टू टर्न अप इन द मॉर्निंग 7 a.m. after finishing a lot of daily chores at your home, and I'm talking about women who are teachers like my mother, right? Yeah. And then go home, do all the other things for your family, and then turn up again on next day. And now in that situation, if you are able to teach well, my god, you are doing a great job. But that kind of hits you hard. तो आई थिंक वही हुआ, टीच फॉर इंडिया में गया किसी और बहुत सारी मीरियाड मिक्स्ड मोटिवेशंस के साथ, पर वहां जाके बहुत हिट हुआ। ये तो मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, फिर हमारी क्लास में जो बच्चे होते थे वो, उनकी बात तो और ही कहानियां है ना। तो वो सब दैट हिट्स यू, दैट मेक्स यू थिंक कि ब्रो यार तू कैसे निकल गया, पहला क्वेश्चन। बिकॉज आई कुड रियली कनेक्ट विद द किड्स का लाइफ। मैं उनको ना ऐसा कहानी सुनाता था जो मैं देखता था ना बचपन में, वही का वही एग्जैक्टली मैं उनको बता, देखो कि मैंने कहा तुम्हारी गली में ऐसा होता होगा, कि ये होता होगा, वो होता। और उनको इतना मजा आता था सुन के, क्योंकि उनको पहली बार लगता था कि कोई टीचर हम, मतलब दे कैन रियली टेल, टॉक टू अस, राइट। दे रियली फेल्ट इट कि यार ये भैया को, तो यार ये भैया की तो लाइफ भी ऐसी रही है। उनको पहली बार लगता था, क्योंकि आई कुड रियली अंडरस्टैंड व्हाट देयर लाइव्स आर, क्योंकि आई हैड बीन थ्रू इट। एंड फॉर मी, लाइक फॉर देम एजुकेशन मेंट दैट, मेरे को भी वही मीन किया था ना, कि वो निकल जाओ बस वहां से, यू नो, इट इजेक्ट्स यू आउट ऑफ सम रियलिटी, व्हिच इट इजेक्ट्स यू, पुट्स यू इन सम न्यू ट्रैजेक्टरी, एंड इट दैट इज हाउ यू गेट आउट। सो वो एक बहुत अच्छा कनेक्शन था बच्चों के साथ मेरा। तो इसमें आई हैव टू क्वेश्चंस है सचिन। आई थिंक एक तो सवाल ये है कि व्हाई डू यू वांटेड टू गो एंड डू एमबीए फ्रॉम अब्रॉड, राइट? Like what was the motivation, if you can just talk about a little bit, कि did you had some clarity about कि इसलिए करना है मुझे बाहर से MBA, और like yeah, what was the motivation? अरे नहीं यार, कोई क्लैरिटी नहीं यार। देखो यार, दो तरीके की क्लैरिटी होती है, मुझे अब समझ में आता है। एक वो जो आप MBA एप्लीकेशन पे लिखते हो, और जो एक एक्चुअली आपको चाहिए होती है। है ना, कि MBA एप्लीकेशन आप किसी की पढ़ लो तो आपको लगेगा कि ये कोई अभी राष्ट्रपति वगैरह बनने वाला है, ना बड़ा बड़ा आदमी बनने वाला है कोई, है ना, है ना, है ना। अरे तुमको मतलब तुम अपने आप को जो लिखते हो वहां पे, मतलब मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हुआ था। तो कोई क्लैरिटी नहीं थी, ऑनेस्टली आइडेंटिटी क्राइसिस था, बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस, बहुत घोर आइडेंटिटी क्राइसिस। घोर आइडेंटिटी क्राइसिस की मतलब यार तुम खुद सोचो ना, ऐसे कैंपसेस में जहां लोग डीजी पे बड़ी बड़ी लाखों की जॉब लेके जा रहे होते हैं, तब कोई बहुत, मतलब तुमको कोई बहुत रॉक स्टार फील नहीं आ रही होती है कि अबे तुम्हारा 5वें दिन एक फाइनल कंपनी। तो यू नो दैट्स
Yeah, yeah. You are told कि your identity is made through this. So you are always chasing for that some big thing कि यार Yeah, मेरी कहीं, और है ना, तो वो तुमको कहीं, it takes you to very very difficult places. And yeah, MBA yeah, कॉलेज being एक चाह होना, MBA yeah, कॉलेज में जाने की चाह होना, इतने जतन करके ये वहीं से आया मेरे मन में, तो कि यार मेरी भी कहीं बड़ी कंसल्टिंग में जॉब लग जाए, और कोई मेरी तो ऐसी, मेरे को लगता भी नहीं कैपेबिलिटी थी भी कि मैं कोई बड़ा कंसल्टेंट वगैरह बन पाऊं, है ना, पर ऐसा बैठा दिया गया था कि यार मशक्कत करके पहुंच ही जाएंगे एक दिन, है ना, कि कुछ तो करना है ना, मुझे भी बड़ा ऐसा, और बड़ा का मतलब वही था कि यार किसी yeah, बड़े कॉलेज से MBA कर लूं मैं, बड़े कंपनी में जॉब हो जाए। तो वो बहुत आइडेंटिटी का प्रॉब्लम था मेरे को, तो yeah, yeah, सीरियसली लगता है मेरे आइडेंटिटी में प्रॉब्लम था, मेरे में गड़बड़ थी है, मुझे ऐसा yeah, yeah. महसूस होने लग गया था कि यार इसी से ही सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो नहीं नहीं, तो वो था। आई वोंट से कि आप में था, आई थिंक प्रीटी मच सब में ही, एवरीबडी गोज थ्रू इट, हाँ, राइट? तो वो व्हाट दैट प्रॉब्ली इज व्हाट इज कॉल्ड एज फोमो एंड द पीयर प्रेशर कि भयंकर, सब लोग कैट कर रहे तो हमको भी करना चाहिए, सब GRE कर रहे तो मुझे भी करना चाहिए, सब बाहर जा करेक्ट, रहे तो मुझे भी जाना चाहिए, बट व्हाट यू करेक्ट, एक्चुअली वांट दैट यू डोंट नो, यू जस्ट सॉर्ट ऑफ पता ही नहीं है, एक तरह से पता भेड़ ही चाल नहीं है, चल रहे हो। या बिल्कुल। तो दूसरा और उसका भी दूसरा सवाल मजा है, मेरा, वो ठोकर खाना जरूरी है एक दो बार, है ना, या सॉरी, या सॉरी। नहीं, नो वरीज। तो इसमें दूसरा सवाल मेरा ये था जो स्कूल के ऊपर था, जिसमें आप कह रहे थे कि सरकारी स्कूल में टीचर्स के बहुत चैलेंजेस होते हैं जो हाँ, तो मतलब आर यू सेइंग कि टीचर्स अगर प्राइवेट स्कूल में हो या सरकारी स्कूल में हो सेम चैलेंजेस होंगे, या सरकारी में कुछ और चैलेंजेस हो रहे होते हैं? हाँ, ये बहुत बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि यार देखो ऐसा है कि एक सरकारी है, मीडियम स्कूल्स हैं, फिर इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स हैं, ओके, बहुत बड़ी तादाद में, है ना। आप ओके, जैसे हैदराबाद जाओगे, आप जैसे पूना जाओगे, आप जैसे बहुत ऐसी हमारी सिटीज है जहां मतलब ऐसे छोटी छोटी बिल्डिंगों में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, है ना। तो वो भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है, और वहां के टीचर्स की लाइफ भी बहुत चैलेंजिंग होती है ना, वहां के टीचर्स की लाइफ भी बहुत चैलेंजिंग है, यहाँ भी बहुत चैलेंजिंग है। पर दोनों में एक अंतर यह है कि यहाँ पे प्रशासनिक चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। एक प्राइवेट स्कूल है, वो अपना प्राइवेटली ऑपरेट कर रहा है, थोड़ा सा तुमने एक रजिस्टर नहीं भरा, कुछ नहीं करा, ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाएगा इधर उधर, है ना। पर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के ऊपर इतनी ज्यादा, और इसमें ना देखो क्या होता है कि बहुत बार हम लोग, जैसे अगर मैं जैसे आज गवर्नमेंट स्कूल के बारे में ऐसा बोल रहा हूं, तो सरकार या गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं है ये, देखिए ये आज का सिस्टम नहीं है भाई, है ना। ये हम ये सबसे बड़ी बात वही हुई ना कि सब बदल गया, पर हमारे क्लासरूम्स अभी भी नहीं बदले, वो एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे 70 साल पहले थे आज से। वही अच्छा, था ना कि कुछ लड़के लड़कियां बैठे हैं जिनको एक टीचर पढ़ा रहे हैं, वो टीचर पे भी उतना ही दबाव है पढ़ाने का जितना सब पे है, और सब वो दबाव फील कर रहे हैं, सब वो डर फील कर रहे हैं, है ना। अच्छा, जैसे टीचरों को चुप रहने के लिए, पूरी क्लास चुप रहे, तो ये अच्छा इंडिकेशन है। पर आप खुद सोचो, एक 56 क्लास बच्चों की क्लास कभी चुप रह सकती है? अरे बच्चे कभी चुप रह सकते हैं क्या भाई? कैसे चुप रख पाओगे तुम बच्चों को? तो या ये या सब दबाव ऊपर से आ रहा है, और अब वो हम्म, मैं ये भी नहीं करूंगा कि करंट गवर्नमेंट उस पे डालने से कोई मतलब नहीं है, ये हम लोग हैं जो इसको जन्म दे रहे हैं ना भाई। हम सोसाइटी में इस चीज को एस्पिरेशनल बनाते हैं ना, हम बनाते हैं ना, हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि भाई डोंट चूज हिस्ट्री एज अ करियर चॉइस, इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर। हम बोलते हैं ना कि देखो हमारे सारे रोल मॉडल्स भी वहीं से आ रहे हैं, देखो सोसाइटी के, हमको कौन दीदी भैया की कहानियां सुनाई जाती है, जो इंजीनियर बन गए, जो डॉक्टर बन गए, जो यहाँ से भारत छोड़ के अमेरिका में सेटल। तो तुम्हारी पूरी शुरू से अगर वो कहानी सुनाई जाए तुमको, वही तुमको बताया जाए कि आदर्श है, तो भाई पूरा सिस्टम वैसे ही सेट है। वैसे ही देखो, मैथ टीचर की ज्यादा इज्जत है स्कूल में, लैंग्वेज टीचर मेरी मम्मी रही है, तो उनको ऐसा थोड़ा सा कम आंका जाता है। फैक्ट है ये, है ना, फैक्ट है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लैंग्वेज टीचर को टू मेक हर प्लेस इन द प्रोग्राम। क्यों है? या क्योंकि मम्मी या पापा की तरफ से भी वो महसूस हो रहा है, सब जगह से हो रहा है, सोसाइटी ने वो बिल्ड कर रखा है या ना। जैसे स्कूल्स आर, बाय द वे, मुझे हमेशा फील होता है स्कूल्स
our schools represent our societal division. They are representative of that. क्यों बच्चे नहीं पढ़ते हमारे जो रिच बच्चे होते हैं, क्यों नहीं जाते सरकारी स्कूल? क्यों हमारे बड़े नेताओं के, कॉर्पोरेटर्स के बच्चे जो इन स्कूलों के लिए जिम्मेदार हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं? अगर जाने लग जाए तो अपने आप प्रशासन का आंख पूरा वहां न गड़ जाए? अगर आज मेरा बच्चा, आज अगर बड़े इंजीनियर, बड़े अफसरों के बेटे बेटियां सरकारी स्कूल में जाने लग जाए कि नहीं, क्लोजेस्ट सरकारी स्कूल, जैसे नॉर्वे, स्वीडन वगैरह छोटी कंट्रीज में ये सुविधा करी गई है। जहां तक मेरे को याद है, आज से कुछ सालों पहले मैंने ये सुना था कि वहां पे नियम है कि यू विल सेंड योर चाइल्ड टू द नियरेस्ट स्कूल, नियरेस्ट जो भी हो, कोई ग्रेडिंग वेडिंग का सिस्टम नहीं है, नियरेस्ट, क्योंकि सारे स्कूलों का एक स्तर अच्छा है, वहां पे अच्छी शिक्षा मिलेगी, और वो तब मिलेगी जब लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्राइवेट स्कूल में देखो, हाई पेड प्राइवेट स्कूल में आज जाते ही है ना पेरेंट्स, सवाल जवाब कर लेते हैं ना टीचर से कि अरे आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो बच्चे के साथ, हाउ कैन यू डू दैट? सो दैट अकाउंटेबिलिटी हैपेंस व्हेन privileged people start sending their children to these school, but वो होगा नहीं, वो मतलब तो उनकी टीचर्स की हालत बहुत खराब है, ये मानने वाली बात तय है ये, और इसके बहुत बतेरे रीजंस है, बट मुझे जो आजकल रीजंस प्रोमिनेंट लग गए हैं वो है हमारी खुद की अप्रोच, है ना? तो वो इज्जत, हाँ, दो चीज़ें समझ में आ रही है। एक तो जो आप कह रहे हो कि आई थिंक द वे वी लुक एट वेरियस सब्जेक्ट्स इज वेरी डिफरेंट, एंड आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज आल्सो गवर्न्ड बाय कि कौन से कहाँ पे कितने पैसे मिलते हैं। आई थिंक वी आर मोर गवर्न्ड बाय कि कहाँ से कितने पैसे मिलते हैं वर्सेस कि कहाँ पे कितनी रुचि है आपकी, और कहाँ पे आप क्या कर सकते हो। आई थिंक वन थिंग आई जस्ट थोड़ा डबल क्लिक करना चाहता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड बेटर कि प्राइवेट स्कूल में समझ में आता है कि प्रिंसिपल है, यू आर एट अ स्मॉल सैलरी, एंड देन देयर आर स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड ऑल, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द टीचर। सरकारी स्कूल में बेसिकली आई एम आल्सो ट्राइंग टू बस्ट दिस मिथ कि राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ मिथ कि सरकारी स्कूल में इतना प्रेशर नहीं होता, इतना कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, कभी क्लास ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे हैं, राइट? तो गिवन दैट यू हैव बीन देयर, ये कौन सा प्रेशर है जो दुनिया को दिखाई नहीं देता है और दुनिया को देखना चाहिए? हाँ यार देखो, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि बाय द वे आई जस्ट वांट टू पुट अ कैवियट आल्सो देयर कि हम लोग, यू एंड आई आर द लकी प्रोडक्ट्स ऑफ दैट सिस्टम, है ना? जिस सिस्टम को मैं अभी क्रिटिसाइज कर रहा हूं, हम लोग एक्चुअली उसी सिस्टम के कारण आगे बढ़ पाए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि there is a mass of people who doesn't get any benefit from this system, right? हम लोग रेयरिटी थे उस सिस्टम की। मुझे हमेशा ये आजकल बिलीव होने लग गया कि we were not the norm, so I cannot be telling कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी कर लो, है ना? तो वहां से वो क्रिटिसिज्म आता है, पहला तो वो, और वो क्लैरिफिकेशन देना था। और क्या दबाव होता है समझते हैं थोड़ा सरकारी स्कूल टीचरों पे, है ना? तो सबसे पहला तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक आइडेंटिटी का दबाव रहता है ना? बहुत आइडेंटिटी का दबाव ऐसा रहता है कि यार, खासकर आज के जमाने में तो, जहां पे आपको दूसरों की लाइफ के बारे में इतनी चीजें ऐसी लग रही है कि इनकी लाइफ इतनी बढ़िया चलती है और इतना कुछ लोग करते हैं, तो आप सोचिए अपनी लाइफ जीना कितना मुश्किल हो जाता है ना? एंड दैट इज वन प्रेशर, दैट इज द सोसाइटल प्रेशर कि यार कुछ कर लो। और खासकर इफ यू आर अ मेल टीचर इन द सिस्टम, वो तो और ज्यादा दबाव वाला काम है ना, क्योंकि नाउ इन मेनी केसेस यू आर आल्सो द ब्रेड विनर फॉर योर फैमिली प्रॉब्लम, राइट? तो आपको एक तो वो प्रेशर है। दूसरा क्या प्रेशर है? दूसरा है प्रशासनिक प्रेशर है कि आपको रोज अटेंडेंस लेनी है, आपको हर चीज एक, और प्रशासन में बहुत चीजें बदलती रहती है यार। मैं बताता हूँ ना, स्कूलों में इतनी जल्दी स्कीम्स चेंज हो जाती है, जैसी सरकार चेंज हुई स्कीम चेंज हो जाती है, ट्रेनिंग मटेरियल चेंज हो जाता है, जिस चीज पे ट्रेन करना है वो चेंज हो जाता है। तो चेंजेस इतने आ रहे होते हैं, और उन चेंजेस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एक टीचर ही है। वो सारे चेंजेस एक टीचर को एग्जीक्यूट करने पड़ते। तीसरा आप ये समझो कि हर सरकारी कार्यक्रम या जो बड़ा
अंडरटेकिंग होता है वो टीचरों के बल पे होता है। कैसे? चुनाव जो आपके मतगणना होती है उसमें टीचरों की ड्यूटी लगती है, पोल बूथ्स पे टीचरों की ड्यूटी लगती है, कॉपी चेकिंग में गॉट इट, टीचरों की ड्यूटी लगती है, गॉट इन्विजिलेशन इट। में टीचरों की ड्यूटी लगती है। और ये तो मैं आपको बड़ी बड़ी वाले फंक्शंस बता रहा हूं। उसके बाद ये सारे लिस्ट ऑफ चीजें होती है। तो बहुत मतलब उस जगह आप जाओगे तो बेचारा टीचर बड़ा परेशान है। कहां से आप एक्सपेक्ट हम्म, कर लोगे कि यार ये कल इनोवेटिव पढ़ाने लगेंगे? यार उनकी मतलब 70% एनर्जी तो इन सब चीजों में निकल जा रही है। गॉट सोचो इट, आज या अगर मैं तो हिस्ट्री जैसे पढ़ा रहा हूं तो मुझे कोई बोल दे यार रोज हम्म, अटेंडेंस लिया करो, अबे कैसे पढ़ा लूंगा? सोचने वाली मतलब है ना। हाँ, तो और एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी चैलेंजिंग है, बिकॉज आप कह रहे हो कि एक तो बहुत फास्ट मूव हो जाती है चीज़ें, और pretty much सब कुछ टीचर को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो सब कुछ। एडमिनिस्ट्रेटिवली इट बिकम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट। गॉट इट, या और मेक्स देखो सेंस। गलती ना करने वाला सिस्टम है। टीचर को एग्जीक्यूट करना पड़ता है वो तो ठीक है, बट आप किसी को बोल दो यार गलती हुई तो देख लेना फिर। और टीचर वो भी डरा हुआ है ना बेचारा, कितना आप समझ लो कितना डरा हुआ रहता है टीचर कि अगर यार एक या या डॉक्यूमेंट में गलती हो गई तो उस बेचारे को ये डर रहता है मेरी नौकरी ना छूट जाए। तो जब इतना डर है सिस्टम में, इतना डर फैला हुआ है सिस्टम में और इतने सारे काम करने हैं, तो हर टीचर फिर पूरी एनर्जी उसी पे ही लगाएगा ना कि यार ये काम टिप टॉप होना चाहिए, पढ़ाए ना पढ़ाए यार अभी ठीक या है ना। तो दिखता बाहर से है कि यार टीचर नहीं पढ़ाते ऐसे नहीं करते, पर जब ऐसे ही अंदर जाओगे तो दिखेगा कि यार ये तो मतलब बड़ा मतलब यहाँ पे मतलब शुरू में हमको भी लगता था ना, हम भी ऐसे ही जोशीले थे, गए ऐसा लगा कि अरे आप ये ट्रेनिंग कर लो। एक बार क्या हुआ देखो, आप एक कहानी सुनाता हूँ कि हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। ये कहानी मुझे किसी एक और टीचर ने अपनी ट्रेनिंग की कहानी बताई कि हम लोग एक टीचर ट्रेनिंग लेने गए और ये बेचारी सीनियर टीचर जब ट्रेनिंग के एंड में वो बोली सर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, तो वो लेके गई अपने स्टाफ रूम में। और वहां स्टाफ रूम में ना बड़ा सा लोहे का ट्रंक था और उन्होंने ट्रंक खोला और वो बोला सर ये पुरानी सारी ट्रेनिंग्स रखी हुई है यहाँ पे कुछ नहीं बदलता सर है ना। कि आप आओगे तो इट इज कॉल्ड एज हिस्ट्री ऑफ इंटरवेंशन, कि ओके, आदमी को बार बार अगर कोई उपाय करके भी उनको अगर फायदा नहीं हो रहा है तो उनके मन में उसके प्रति भी शंका आ जाती है कि अरे यार क्या कर लोगे यार। बहुत लोग आके करके चले गए। पहली बार जब या हम यंग थे तो हमको लगता था कि अरे बहुत बढ़िया इस ट्रेनिंग से मेरा जीवन बदल जाएगा होता है ना वो। फिर या 16-17 साल बाद लगता है यार भाई कुछ ना किसी का जीवन बदलना यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो यू हैव टू पे दैट रिस्पेक्ट टू दीज पीपल एंड दे आर अ लॉट ऑफ या देम, है ना। या तो या वो हम भूल जाते या हैं। किसान और टीचर ये हमारे देश में ना इनको बहुत कम इज्जत मिलती है। मुझे बस ऐसा या बहुत कभी कभी फील होता है। और ये एक एक हमको खाना खिला रहा है और एक हमको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, दोनों या दो तो वो भी both वो are भी like some of the lowest rungs. Yeah, and under so much of pressure, like they are not financially well off, they're under so much of हाँ pressure. Yeah, quite quite हाँ quite a tough situation to be in. So बिल्कुल यार so एकदम। after being in Teach for India for so long, like close to about 7 years, uh, what made you now go for MBA or higher studies in the US? यार देखो दो दो मतलब बड़ी काफी वो चीजें हैं, फनी फनी कहूंगा मैं। एक तो बहुत रिजेक्शंस हुए जब मैंने Hmm. एमबीए एप्लीकेशंस डाली। Hmm. 2018 में शायद अप्लाई करना शुरू किया था। 8-9  2018 is रिजेक्शंस तो basically आ गए। 10 years after graduating from IIT. हाँ तो आप समझ सकते हो ना। तो सबसे पहले तो तुमको यही बोला जाता है कि सर आपकी ना थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई अभी है ना। कि यार आपको लोग मतलब कंसल्टेंट वगैरह यही बोलते हैं कि यार Hmm. यू आर ऑन द ओल्डर साइड बट वी विल ट्राई। अच्छा अच्छा। पहला तो वो। दूसरा मैंने क्या बोला कि किसी की आप एमबीए एप्लीकेशन पढ़ लो, मेरी ही पढ़ लो, तो मेरे आपको लगेगा कि मैंने कुछ मतलब बस बदल ही दी दुनिया आज, है ना। अब वो लिखना कितना मुश्किल, Hmm. लच्छेदार भाषा अंग्रेजी में एकदम मतलब तुम जैसे पूरा अपना तुम वहां पे अंग्रेजी लेखन का ज्यादा टेस्ट है ना यार वो तो। क्या आप कितनी Yes. अच्छी अंग्रेजी लिख सकते हो, कितना बढ़िया अपने राय को पहाड़ बना सकते हो। तो वो करने में थोड़ा मतलब लगता है कि यार ये तो किया ही नहीं है।
ये कैसे लिख दूं? Yeah, तो है ना, yeah. फील होता है वो, पर वो तुमको बताते हैं लोग कि यार नहीं नहीं ऐसे नहीं, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट वेल। तो आप रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में पड़ते हो। अब आप करो भी तो भी आप उतना अच्छा नहीं कर पाते हो यार। हमारे एजुकेशन सिस्टम में राइटिंग नहीं सिखाई जाती है। अमेरिकन सिस्टम में राइटिंग को बहुत तवज्जो दी जाती है डे वन से। बच्चा यहाँ पे किंडरगार्टन से राइटिंग सीख रहा होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे राइटिंग का बहुत बोलबाला है। तो वो आपको अडेप्ट करने में, महू से आया हुआ लड़का जिसने पहली नॉवेल कॉलेज में पढ़ी है ना, वो उससे ये सब करवा रहे हो, तो करना पड़ा। और करना पड़ा, उसके रिजल्ट कुछ अच्छे आए नहीं, 8-9 कॉलेजेस से रिजेक्शंस आए और बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ। माय गॉड, वो बहुत बुरा समय था। और उसी समय वाइफ का हो चुका था, मतलब कॉन्फिडेंस इतना था कि जब वाइफ और मैंने साथ में अप्लाई करना शुरू कर, तो अपने को तो अपन भैया आईआईटी है ना, तो अपने को तो ऐसा कॉन्फिडेंस कि अपना तो बड़े बड़े कॉलेज में ही होगा, है ना। हुआ ऐसा कि उसका हो गया पहले अटेम्प्ट में, पहली एप्लीकेशन में, और अपन भाई अपने 9 रिजेक्शन आए। और बड़ा मजेदार कहानी है ना। तो देन व्हेन शी वेंट एंड वी कुडंट, लाइक वी डिड नॉट वांट टू डू लॉन्ग डिस्टेंस, सो आई मूव्ड विथ हर टू बॉस्टन। Okay. एंड व्हेन आई मूव टू बॉस्टन, वहां पे बड़ा मजा आया, क्योंकि वहां पे मैं अपनी वाइफ के भरोसे रहता था थोड़े दिन, और फिगर आउट कर रहा था कि यार क्या करना है एक्चुअली अभी लाइफ में। 2 कॉलेजेस में हो गया था, ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं Okay. हुआ था, बट देवर लाइक वो नहीं, वो एक लिस्ट बनाते हैं हम कॉलेजेस की, जो टॉप होती है, फिर वो रिजर्व होते हैं, और रिजर्व के भी रिजर्व होते हैं। तो ये रिजर्व के रिजर्व वाले थे, है ना। Okay. बट फाइनली आपकी लच्छेदार भाषा किसी को पसंद तो आ गई। किसी को आ गई, बिल्कुल आ गई। और मैं बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, ये भगवान की दया ही है कि कैसे होती है चीजें पता नहीं यार। प्रॉब्ली ये इतने सारे रिजेक्शंस आए, उससे एक चीज हो गई थी कि अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स अच्छी हो गई थी, और ऑनेस्टली उससे फायदा लाइफ में बहुत हुआ। मेरी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन स्किल, जो आजकल कभी कभी लिंक्डइन पोस्ट डालने में काम आती है ठीक है, वो अच्छी हो गई, है ना। तो उसका मैं फिर भी ग्रेटफुल हूं कि उन रिजेक्शन से भी कुछ मिला ही, कुछ सीखने को ही मिला, अच्छी बात है ना। और फिर वो 2 कॉलेजेस थे, उनको भी मना कर दिया, और वहां पे भी घर वाले बड़े परेशान हो गए थे। उनको लगा कि अरे फिर से भटक गया क्या, क्योंकि जब कॉलेजेस में होता है तो घर वालों को ऐसा लगता है कि उनका जीवन सफल हो गया, है ना। तुमको भले ही लगना रहा हो, ठीक है, उनको लगता है भाई हमारे तो जन्मों की तपस्या, पता नहीं, मतलब कुछ थॉट प्रोसेस है वो। बट हाँ, तो वहां पे जब मना किया, एंड देन वहां समझ में आया कि यार प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अच्छा लगता है मुझे कुछ करना, सो लेट्स गो फॉर दैट। एंड किस्मत थी, मिल गया, चांस मिल गया वहां पे, और देन आई डिड माय ये कार्नेगी मेलन वाला प्रोग्राम। वेरी ग्रेटफुल टू कार्नेगी मेलन फॉर दैट, ऑनेस्टली, टू गिव मी अ चांस, टू गिव चांस टू समवन लाइक मी। एंड विदाउट, उनका मतलब क्राइटेरिया था कि आपकी कंप्यूटर साइंस डिग्री होनी चाहिए, अपनी तो वही मेटलर्जी, है ना। जो मेटलर्जी वाला तो भैया जिंदगी के आधे पल तो मैं यही सोचा हूँ कि यार हमारी कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं थी, है ना कि होती तो यार क्या होता है ना। तो वो भी ख्याल आए अपने तो उस समय जीवन में कभी कभी कि यार कंप्यूटर साइंस होती क्या मजा। पर वहां पे भी कंप्यूटर साइंस, मैंने कहा देखो यहाँ पे भी रोड़ा लग गया। पर ठीक है, आई थिंक दे कंसिडर्ड मी गिवन माय एक्सपीरियंस एंड ऑल, एंड it was amazing. And हाँ, तो ये ऐसे that is how I landed up there यार। I mean it is And very how was your experience? So given ki when you went to IIT, right, it was people coming from different states of the country, coming from different economic background, that made us learn so much. Was it a similar experience there with people coming in from different part of the world? How was the experience there? यार honestly क्या हुआ ना कि I entered CMU in 2020 and 2020 Okay. was the pandemic year. So Okay. so 3 महीना मैं वहां था, उसके बाद मैं गया बॉस्टन फॉर आवर ब्रेक। मार्च 7th 6th या 11th वाली बात थी, और बस तभी से ही यहाँ पे वो डिक्लेयर हो गया था कि फ्लाइट्स नहीं आ रहे, एंड ऑल ऑफ दैट things started shutting down and all of that. And Okay. after that I Okay. directly went in November and degree got over in December. So I Okay. think I did not get a chance exactly 1 year degree plus बीच में pandemic आ गया, तो सब कुछ remote हो गया, and so never got like that chance. But I think 2-3 months I was in Pittsburgh, I really appreciated the town. I really loved it. It was typical. मेरे को सही में स्मॉल टाउन्स और स्मॉल टाउन में बसे हुए कॉलेजेस वाले कॉन्सेप्ट से ही प्यार हो चुका है। पूरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी ऐसी रही है। रुड़की गया, महू से था, रुड़की गया,
जमशेदपुर गया, है ना, फिर पूना रहा थोड़े। पर वो एक फंडामेंटल मेरा कैरेक्टर वैसा है कि एक स्मॉल टाउन है, लोग बार बार तुमको दिख रहे हैं एक ही जगह पर, पहचान हो जा रही है थोड़े दिनों बाद, बहुत हेल्पफुल लोग हैं, है ना। तो पिट्सबर्ग इज मुझे काफी मजा आया पिट्सबर्ग में, जितने थोड़े बहुत टाइम था पर अच्छा था। Got it, got it. So, Sachin, I think after looking back, right, 14, 15 years now that we have graduated and you have done like so many experiments, आपको अगर फिर से करना होगा तो आप क्या चीज़ें चेंज करोगे? If you have to do, write your career, mold your career again, what will you do and not do? यार हाँ, ये बहुत शानदार सवाल पूछा यार, गुड, लाइक आई एम रियली हैविंग सो मच फन टॉकिंग इन विथ यू, सो थैंक्स फॉर ऑल द नाइस क्वेश्चंस। मैं भी मैं मैं भी आपकी तरह सारे सवाल पूछने में लगा हुआ हूँ कि कुछ भी पूछ लूँ। नो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इट्स वेरी नाइस। एंड आई थिंक वो पारी की शुरुआत अब मैं करना चाहता हूँ। यू नो, दैट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट कुड हैव प्रॉब्ली ड्रोव मी कि यार क्या बदलना था। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे को अपने एजुकेशन से एक अलगाव सा हो गया। द वे वी आर एजुकेटेड, द वे वी आर आस्क्ड टू चेस सम वेरी रॉन्ग मैट्रिक्स, है ना। कब क्या क्या चेस करते रहते हैं यार हम, तुम कभी यूथ में जाके सोचो तो सोचता है यार क्या चेस कर रहे थे, है ना। तो है ना, और अच्छी बात है, मेरा देखो इसमें कोई गलत नहीं है, सबको करना चाहिए चेज, क्योंकि वो चेज को करके ही तुम्हें समझ में आता है कि उसमें क्या फ्यूटिलिटी है ना। दूर से खड़े होकर नहीं बोल सकते, तुमको करना जरूर होगा, तुमको एक बार तो वो गेम खेलना होगा ही होगा, और उसमें हर्ट होना होगा, उसमें सैक्रिफाइसेस करने होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार हो गया, अभी ये और नहीं करना टाइप्स, है ना। बट द पॉइंट इज दैट आई वुड हैव लव्ड मोर inclusion of literature, philosophy, arts in my education. मुझे उसको ज्यादा तवज्जो देना नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खासकर जब आप इंजीनियरिंग माइंडसेट के होते हो, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का ही आपका एक फ्रेमवर्क और जजमेंट मेथड बना होता है, आपको लगता है कि अगर कोई इस एग्जाम में पीछे होता है ना, ऐसा इसलिए तो बच्चों को इतना आइडेंटिटी क्राइसिस होता है कि जेई में नहीं हुआ। और मैं आजकल के बच्चों को बोलता हूँ क्या जेई वेई में नहीं हुआ, भाई इतनी बड़ी लाइफ है तुम्हारी, क्या क्या जेई में, इट्स ओके, मूव ऑन, है ना। तो जेई में भी साला उनको ये पता नहीं होता है कि हम लोगों को भी यही लग रहा है, मतलब जेई में होने के बाद भी वो आइडेंटिटी क्राइसिस सॉल्व ही नहीं हुआ। अब वहां जेई के अंदर घुस के कॉलेज में लगता है कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं मिल गई, कंप्यूटर साइंस वाले को लग रहा है कि आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं मिली, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस को कुछ और ही लग रहा है ना। तो भाई ग्रस्त तो सभी है, तुमको ये कोई बताता नहीं कि भाई सब लोग ग्रस्त है भाई, टेंशन ही मत ले, एवरीवन इज फीलिंग दैट। वो आईआईटी कहीं और, आईआईटी फिर आईआईएम चले जाओ, अब वो आईआईएम जाकर भी वही ग्रस्त था, वहां पे भी ग्रस्त है इसी फीलिंग से कि यार हमारी कोई बड़ी नौकरी क्यों नहीं लग गई। तो अल्टीमेटली द अंडरस्टैंडिंग इज कि ब्रो हमेशा ही तो अनसेटिस्फाइड फील हो रहा है, तो क्या मिला हमको, तो वादे किए गए थे कि 8वीं में वादा किया गया कि अच्छी मेहनत करो तो 10वीं में बहुत अच्छे नंबर आओगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें, नहीं लगा, शॉर्ट लिव्ड था। फिर बोला कि 12वीं कर लो, फिर बोला 12वीं के बाद जेई कर लो, वो भी कर लिया, जेई के बाद बोला मास्टर्स कर लोगे तो पक्का खुशी मिलेगी। आई एम लाइक ब्रो नहीं मिल रही, अभी भी नहीं मिल रही ना, तो क्यों नहीं मिल रही। एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार थोड़ा सा लिटरेचर, थोड़ा सा फिलॉसफी, थोड़ा सा जीवन का ज्ञान, थोड़ा सा लोगों से बातचीत करने के तरीके, थोड़ा सा जीवन जीने के कुछ नॉलेज, पता नहीं थोड़ा अध्यात्म, ये कहां से आएगा। हमारे यहाँ तो बस एक डिपार्टमेंट था ह्यूमैनिटी, जिसका भी एक कोर्स बना देते थे, जिसमें भी आप ए के लिए फाइट मार रहे होते थे, ए मिल जाए, ए+ मिल जाए, अरे भाई उसमें भी तो, मेरा बस कहने का मतलब है कि हमने हर चीज को कॉम्पिटिटिव बना दिया, हर चीज को। बच्चे बड़े बड़े फिलोसोफर की किताबें इसलिए पढ़ते क्योंकि कैट क्लियर करना है, मतलब उससे ज्यादा बेकार रीजन क्या हो सकता है यार, बताओ तुम, है ना, कि तुमने किसी बड़े दार्शनिक की किताब पढ़ी, जॉन पॉल सार्त्रे की किताब पढ़ी, और इसलिए पढ़ी कि कल को वो कैट का पैसेज आ जाएगा तो अच्छा कर दूंगा। अरे भाई, है ना, तो ये बच्चों की गलती नहीं है, पर हमने एज वो मोटिवेशन ही हमको ऐसी दी जाती है ना, कि आप सोच ही रहे होते कि यार बस हिस्ट्री यार 10वीं के बाद बस बंद हो जाए ये किताब, अब बस आखिरी है ना। पर ये भूल जाते हो कि अरे ये इस हिस्ट्री में बहुत अवेयरनेस भरी हुई थी जो तुमको दी ही नहीं गई, जो तुमने कभी पाई नहीं।
तो वो बदलाव थोड़ा आ जाता मेरे जीवन में, तो मुझे लगता है कि पर ठीक है, इसी कारण से मम्मी का बहुत हेल्प हुआ, माता जी के कारण हिंदी का जो एक सहारा मिला, उसी के कारण फिर ये सब आगे चल के थोड़ा रेवर्बरेशन जारी रही, क्योंकि साहित्य तुम्हारे अंदर एक इमोशन जागृत करता है, और वो इमोशन ना अंदर से पिघलाता है तुमको, मर्म मर्म जिंदा रखता है तुम्हारे अंदर का, बच्चा जिंदा रखता है तुम्हारे अंदर का। क्या होता है ना कि आज की सोसाइटी में वही है ना कि द चाइल्ड विद इन इज किल्ड वेरी फास्ट। आप बच्चे नहीं रह पाते, आप सहजता नहीं रख पाते। और जब साहित्य Yeah. पढ़ते हो, वहां पे बड़े बड़े महान कैरेक्टर्स की को देखते हो, फिक्शनल हो या नॉन फिक्शनल हो, रियल हो, उनको जब देखते हो, उनके जीवन को देखते हो, तो तुमको लगता है कि हाँ यार, कितने अच्छे आइडियाज हैं तो मैं भी कुछ कर लूं। मैं पिघल जाते हो तुम, थोड़ा रोना आएगा, कभी आंसू टपकेगा, अच्छा लगता है कि अंदर यू आर अलाइव। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस ट्रैक पे हमको ढकेला गया, उस ट्रैक पे थोड़ा सा लिटरेचर वगैरह का एक एक्सपोजर मिल जाता, अच्छे टीचर उस डायरेक्शन में और मिल जाते, तो अच्छा रहता। पर अब मिल गए, मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि ये मलाल है, पर इसी मलाल से एक शिक्षा भी है कि यार आज भी कर सकते हैं ना भाई, ठीक है। अभी वो Yeah, yeah. पहली इनिंग थी, अभी ये दूसरी चालू करेंगे। तो अभी उसी डायरेक्शन में थोड़ा चल रहा है। बट जैसे आपने 14-15 साल जो है आपने मतलब क्वेश्चन पूछते रहे आप अपने आप से कि आईआईटी कर लिया तो क्या हुआ, टाटा स्टील पहुंच गया, नौकरी लग गई, ठीक, तो क्या हुआ, मैं टीच फॉर इंडिया में आ गया तो क्या हुआ, मैं सीएमयू में आ गया तो क्या हुआ। सो यू आर ऑलवेज आस्किंग योर क्वेश्चन कि like is this, am I happy, am I satisfied or not, and which is where Yes. you are able to finally arrive at कि oh this is what I actually want, इतने साल से मेरा पीछा जो कर रहा है वो साहित्य कर रहा है, and this is बट अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जो 20 साल का है, राइट, आपको तो हाँ। 15 साल की जो क्वेश्चनिंग है, अगर ये 15 साल की क्वेश्चनिंग और इसका जो जूस है, अगर किसी 20 साल वाले को समझाना है और 20 साल वाले को अगर ये चीज़ समझनी है, तो कैसे कैसे उसको पता, हाउ a 20-year-old should look at this and figure out where they should be spending their life energy. हाँ यार, बहुत लोडेड क्वेश्चन है ये तो, है ना, मतलब मुझे लगता नहीं Yeah, है मतलब कि let's see if पर मैं let's see. अपने उससे बताता हूँ कि Yeah, यार मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कोशिश करिए कि सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्क आप ले पाओ। स्टेटस को मान मत लो कि ये ऐसा ही होता है ना। और जैसे मैं जब कहता हूं ना कि अपने मन के बच्चे को जिंदा रखना है, ये मेरा उद्देश्य। आजकल मुझे लगता है कि जिंदगी की जो मार होती है, जिंदगी के जो थपेड़े होते हैं ना, उसके बीच में अगर आपने इनर चाइल्ड को जिंदा रख लिया ना, वही सक्सेस है। yeah, वो ही सक्सेस है। और वो इनर चाइल्ड का मतलब क्या है, आप देखिए, चाइल्ड का एक चीज जो आप देखेंगे बच्चों की होती है कि पहली बात, वो हमेशा नेकता और खुशी तलाश रहे होते हैं। कोई बड़ा एडल्ट मिल जाए, कोई बड़े भैया मिल जाए जो उनके साथ खेल ले, मजा कर ले, अच्छी बातें कर ले, चिपक जाते हैं उनसे। नाना नानी, दादा दादी, चाचा फूफा मौसी, जो उनको अच्छा दिख जाता है उनका वो लोग उनको ले लेते हैं। तो पहला तो वो फन ढूंढो, कोशिश करते रहो, एंड बी रूथलेस अबाउट इट। व्हेन आई से रूथलेस, इसका मतलब ये नहीं कि अपने व्यवहार में रूथलेस हो गए, पर अपने चॉइसेस में, कि यार नहीं हो रहा ना, कोई जॉब ली, 1-1.5 साल करके देखिए, अगर मजा नहीं आ रहा, अगर एक्चुअली तुमको सम्मान फील नहीं हो रहा, तो वो सम्मान प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करो कुछ और करो। क्योंकि अगर तुम खुश रहोगे तो तुम खुशी फैलाना सीखोगे, ये तय सी बात है। वही आदमी आगे और खुशी फैला सकता है जिसके मन में खुशी है। तो अगर yeah, आप yeah, अपनी खुशी की तलाश करो, और अपनी खुशी का मतलब ऐसा उछड़ंकल टाइप की हरकतें नहीं करना है कि कोई बोल दे कि जस्ट समटाइम्स बच्चे बोलते हैं मुझे, कि मैं पूछता हूं उनसे कि क्या करने में मजा आता है, तो बच्चे बोलते हैं भैया लोगों से ना बातें करने में बहुत मजा आता है। अबे मैंने कहा भाई, ये नहीं कह रहा हूं भाई, नाइट आउट मारने तो सबको मजा आ रहा है, पर वो मजा तो क्षण भर का है ना भाई, ये तो चला जाना है। कुछ ऐसा मजा जहां आपका एक स्किल भी डेवलप हो रहा है, वो मजा ढूंढो कि यार जब मैं ये काम करता हूं तब मेरे बोलने का स्किल, मेरे काम करने का स्किल, मेरा डिसिप्लिन बढ़ जाता है। इस काम को करने के लिए मैं कभी भी पहुंच जाता हूं। तो
हाँ, इस काम से मुझे कुछ एक्चुअल ग्रोथ मिल रही है और मुझे मुझे मन में मजा भी आता है, तो अच्छा काम है, करो। और हर मजा ना थोड़े दिनों बाद खत्म होने लगता है, तो उस पर ध्यान दो। वो आई थिंक स्टीव जॉब्स, ये सब बड़े लोगों ने पहले बोल रखा है शायद। स्टीव या जॉब्स ने एक कभी बोला था कि मैं आईने के सामने हमेशा हर दिन खड़ा होकर पूछता हूँ, और जिस दिन मुझे लगता है कि नहीं यार दिस इज नॉट वर्थ इट, उस दिन से मैं ये सोचने लगता हूँ कि अब इसको खत्म कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि वो इज द बेस्ट वे टू से कि हाँ यार, इस लाइफ में सोसाइटी ने कुछ मुझे बता रखा है क्या सही है, बट उस सही को परस्यू करके अगर मुझे मजा फील नहीं हो रहा है, तो शायद मुझे कोशिश करनी चाहिए कुछ और करने की। और ये या जरूरी है, देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हर किसी को कुछ डिफरेंट करना चाहिए, ये मतलब नहीं है। जैसे बच्चे कभी कभी पूछते हैं कि अरे भैया आप खुद यूएस में चले गए, उनका ऐसा लगता है ना कि आप यूएस में चले गए हमको बोल रहे हो। मैंने बोला हमको नहीं बोल रहा हूं, तुम भी पूरी दुनिया घूम के आओ, जो जो मन में है वो पूरा प्राप्त कर लो, पहले कर लो, खूब मेहनत करके देखो और कर लो वो काम। पर पर जब वो मन खत्म होने लगे तो भी उसकी तरफ ध्यान दो, क्या अब मजा नहीं आ रहा है, और जिस दिन मजा नहीं आ रहा है मूव ऑन कर जाओ। या तो दैट फॉर मी इज लाइक इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ, जैसे हार्डवर्क आपको हमेशा करना होगा यार, ये मेरे को लाइफ में हमेशा समझ में आ गया है। एंड देयरफॉर आइदर यू कैन डू इट इन अ फन वे, by working hard for something that you truly enjoy doing and that also creates value for others. I think that या is a great criteria, है ना, कि तुम भी enjoy कर रहे या हो और कुछ आसपास के लिए भी वैल्यू क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को अगर मन है तो कि यार मेरे को ना अपने दोस्तों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ा यार, तू रोज 2 घंटा पढ़ा अपने दोस्तों को, और अच्छा पढ़ा, अच्छी तैयारी करके पढ़ा, क्या पता वहां से तेरी राह निकल आए, है ना। या क्योंकि या इमरजेंस की एक क्या क्वालिटी होती है ना, कि इमरजेंस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। जैसे आज कोई कुछ राह पे चला तो हम बता नहीं सकते कि तेरा करियर कैसे बनेगा, हो सकता है उसको मजा आते आते वहीं पे करियर भी दिखने लग जाए, है ना। एंड या देन दैट इज हाउ यू बिकम अ पायोनियर, कि जिस फील्ड पे किसी का ध्यान नहीं था उस फील्ड में तुमने नया रास्ता निकाल दिया, क्योंकि तुम तो मजे के लिए निकले थे, तुमको तो बस मजा आ रहा था और मजे में डिस्कवरी होते चले गए, या है ना। या तो या वो एक, और उसके लिए रिस्क लेनी होगी, है ना। या रिस्क हर जीवन के हर पड़ाव पे लेनी होगी। यूथ में एक अच्छी बात ये होती है कि 20 साल की उम्र में आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत हाई होती है ना। आप पे दबाव नहीं होता है जनरल परिवार का, जनरल एक्सपेक्टेशंस का, जनरल कमाई धमाई करने का नहीं होता। 20 साल, 19 साल, 18 साल, तो आप रिस्क ले सकते हो। एंड माई होल थिंग इज कि टेक दोज रिस्क, देयर इज नथिंग रॉन्ग, है ना। या बट बी रेडी टू लर्न। रिस्क लेके अपने दिमाग में ये मत सोचने लग जाओ कि बस मैं तो अब यही करूंगा। बी रेडी टू लर्न, चेंज, क्विकली बदल जाओ, या है ना। तो या यही सब बहुत जनरल, बट चेस फन इज या समथिंग विच आई कीप टेलिंग पीपल कि यार। maybe I'll just add on to this, right? तो मुझे लगता है कि हम्म, if somebody in his 20s, right, and so people will be a different financial situation, financial backing, right? हो करेक्ट, सकता है कि उनके पेरेंट्स के पास ठीक ठाक पैसे हों and they don't have to worry for money, and there would बिल्कुल be some kids who would be जिनको पैसे कमाना बहुत ज़रूरी होगा, right? जैसे बिल्कुल हमारे साथ था कि अगर हम नहीं कमाते तो भैया मतलब बिल्कुल सड़क पे ही होते बिल्कुल तो बिल्कुल। तो तो so I think what is उनके very लिए important कैसे? is what is very हम्म, important is कि whichever situation you are in, you should हम्म, always ask questions, keep हाँ asking questions, and unless बिल्कुल जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो आपको बिल्कुल सवाल पूछते रहना है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आप चाहे मज़ा आ रहा हो या नहीं मज़ा आ रहा हो, get into something which makes at least that financial machine to run, हैप्स and then you're still एब्सोल्युटली asking questions, and then you're still asking 100%। questions, and then if you can maintain some amount of money जिससे तुम्हारा थोड़ा runway बन जाए, then you can go ahead and explore whatever is your true calling. I think 100%। that may that may take Thank like God, yeah, yeah. No, thank God you actually called it out and you said it so well, क्योंकि जो मैं बोला वो सिर्फ वो एक साइड था। दूसरा साइड ये भी था, जैसे मैंने अपने कॉल पे आपको बता रहा था कि यार एक समय फील हुआ कि यार मैं इतना गरीब कैसे हूं। लगा मुझे अपने मन में कि यार हद हो गई। जैसे टीच फॉर इंडिया के एंड में ऐसा लगने लग गया था कि यार
हद हो गई, मेरे को भी थोड़ा ज्यादा पैसे कमाने, मेरा भी मन है इधर उधर घूमने का, मेरा भी थोड़ा दुनिया देखने का मन है, दूसरे लोग देख रहे हैं, इतना मजा कर रहे हैं, तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। और वो बिल्कुल सही बात है। या वो या जो एंगल है, देखो, मेरे को लगता है दुनिया में हर बच्चे को कोशिश करनी चाहिए अपनी मेहनत से पैसे कमाने की। यार, अपनी मेहनत से पैसे कमा के तुमको जो लर्निंग्स होती है ना, जितना सीखने को मिलता है, कैसे भी, मतलब आप सारे अच्छे तरीकों से कोशिश करो पैसे कमाने की, क्योंकि जब कमाओगे तो सही में फील होगा। और करो उसको, बिल्कुल, वो आप बिल्कुल विवेक, एकदम, आई डोंट थिंक आई विल, इट इज सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट। बिकॉज मेरे को लगता है वो टीच फॉर इंडिया टाइम पे मैं ज्यादा फिलोसॉफिकल हो गया था, मेरे को लाइफ का प्रैक्टिकल साइड के बारे में अभी भी कोई ज्ञान नहीं था ज्यादा, है ना। तो जरूरी था ये एमबीए का स्ट्रगल मारना, जरूरी था ये नौकरी करके देखना, सब कुछ जरूरी था, क्योंकि या जरूरी है आपको कोशिश करना कि नहीं, मैं हाईएस्ट पे जाना चाहता हूं, और या उसको या जाने में जब आप फेल होगे तो लर्निंग अपने आप आती जाएगी। तो या बिल्कुल सही या बोले आप। आई थिंक, थैंक यू फॉर कॉलिंग दैट आउट, दैट यस, चेज फन, बट देर आर, यू ऑल्सो हैव टू, और बाय द वे, फन का बहुत बड़ा हिस्सा पैसा भी होता है, या सो पता आई है। थिंक हाँ, द वही। प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस इज, जो मैंने रियलाइज किया है कि हम्म, like you, let's say you wanted to do a couple of things in your life, but जब तुम चेस करने लगते हो, when you हम्म, basically जैसे जैसे बड़े होते हो, you start forgetting what you actually wanted when you was a kid, या, right? तो मतलब these days I think a lot कि जब मैं 10 साल का था तो मेरी क्या इच्छाएं थी, हम्म, और versus what I'm trying to chase, and looks like कि हम्म, FOMO में, peer pressure में, हम्म, we start chasing metrics which are something we didn't want it to do. So, या, so when you're doing something, you always ask, and that probably helps you get back on the path. या, So, Sachin, coming back to the last question that I have for today, which is that I see that you are quite interested in history, और history के बारे या, में काफ़ी बातें कर रहे हैं आप। I think videos भी बना रहे हैं हम YouTube पे। बिल्कुल। I think आपने न्यूज़लेटर भी उसके ऊपर शायद आप बना रहे हैं। आप LinkedIn पे ही बात यस। कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। So now that you have discovered your love for history, if I can say so, for so many years, what is, just share that love with the people, the audience here, and why they should also look at the Indian history, and what is there for them, and why they should spend time and try to understand about it. Yeah, absolutely. Thank you. So I think one thing which colonization did to our country was that it just did not drain the wealth out of our country, which they did in a crazy, crazy way. Like, it's, matlab, to be 25%, to have a 25% export share of the world economy at one point of time, to go to 3% when you become independent, that tells you how much was taken. तो वो तो किया ही किया, बट उससे ज्यादा जो किया वो ये था कि हमारी साइकी को बदल के चले गए। जो इंग्लिश एजुकेशन का एक सबसे बड़ा पर्पस ही ये था कि भारत को एक ऐसी कॉलोनी की तरह तैयार करा जाए जहां पे एक पूरा सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, और मेरा कहने का मतलब है कि आई एम नॉट, दिस इज not saying that English education did not help, but it was not planned to help us. Yeah. है ना, the design was not such कि अरे इनका भला हो जाए, ये लोग तो आगे, the design was कि हमको पता है civilized ways क्या होती हैं, और हम इंडियंस को सिखाना चाहते हैं कैसे civilized बना जाए, है ना। तो ये सब चीजें जब समझ में आती है, तब समझ में आता है, तब और वो क्वेश्चनिंग की पावर बढ़ते जाती है। तो पहला तो हिस्ट्री में ही जाकर समझ में आएगा। दूसरा, अगर आपको हिस्ट्री का नॉलेज होने लगता है, और हिस्ट्री में भी स्पेसिफिकली हिस्टोरियोग्राफी जो होता है, हिस्टोरियोग्राफी विच इज इतिहास लेखन, कि कौन लिख रहा है इतिहास, ये भी डिटरमाइन करता है कि कैसे कैसे लोगों की सोच हो। Yeah. तो होता क्या है कि आपको बड़ा एक सेंटर्ड लेवल का हिस्ट्री, जैसे आप अपनी सीबीएसई की या कोई सी भी हिस्ट्री बुक उठा के देखोगे तो बहुत दिल्ली सेंट्रिक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है,
है ना? Yeah. क्यों? इतने Yeah. रीजन्स थे, इतने एम्पायर्स थे। हमारे भारत की बात ही ये है ना भाई, कि नॉर्थ ईस्ट से डाउन साउथ से एक्सट्रीम वेस्ट से नॉर्थ में सब रीजन्स की अपनी अपनी महानता है। सब में बड़े बड़े अच्छे किंगडम्स हुए, सब में बड़ा बड़ा बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा गया, साहित्य है, कल्चर है, फेस्टिवल्स है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो उनको कब हम समझेंगे, उनको हम कब सराहना करना सीखेंगे, उसके लिए हमको एक जागृति लानी होगी, है ना? वी हैव टू ब्रिंग दैट अवेकनिंग, और हिस्ट्री में जाकर ही समझ में आएगा कि अरे हम बहुत महान देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारा पतन हो गया, हम एलिंग है, आज भी हमारी बहुत कुप्रथाएं हैं जो हमारी सोसाइटी से बाहर निकलनी चाहिए। आज विमेन इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, आज ये सब चीजों की आज बात हो रही है, पर प्रमाण मिलते हैं, पहले भी प्रमाण मिलते हैं इन सब चीजों के, और ये पहले था हमारे पास, right? And all of that becomes very very clear when you start reading history, and you have to do it in a balanced way, not for some petty political agenda. And अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको कोई पेटी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज जरूर कर सकता है। ये मुझे बहुत समझ में आ गया है कि यार हिस्ट्री को बार बार पॉलिटिशियंस ट्विस्टेड एंड्स के लिए यूज करते आए हैं। ये आज की बात नहीं है, ये पहले की बात बता रहा हूं, सब टाइम यूज हुई है ऐसा। और वो तभी हुई है क्योंकि जनता में ही उसकी जागरूकता नहीं है। और जनता में क्यों नहीं है? क्योंकि हम 10वीं के बाद हिस्ट्री कभी पढ़ते ही नहीं है। अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो हिस्ट्री बिकम्स ऑप्शनल इन 11th and 12th। तो आपको तो पूरे भारत के इतिहास को देखकर यही लग रहा रहता है ना कि अबे ऐसे ही डार्क डार्क सही है, ऐसे ही पुरानी मान्यताएं, ऐसे ही हम लोग तो वहीं फंसे हुए थे, क्योंकि ये पढ़ाया वैसे उस तरीके से एक हमारे को लाइट ऐसी डाली गई है। And that is what I mean when I say कि colonial empire that did that disservice to us. They made us see our own history with anger, with a lot of frustration, with a lot of, हमको हमेशा लगता था हमारे राजे हार ही रहे हैं हमेशा, हमारा इंडिया का राजा कोई जीता ही नहीं कभी। हाँ, कि यार ये क्या नाटक चल रहा है, मतलब जब देखो कोई बैटल हो सब हार रहे। पर भाई जब तुम मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ो, तुम राणा प्रताप के बारे में पढ़ो, डाउन साउथ तुम मार्तंड वर्मा के बारे में पढ़ो, तुम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ो, अरे मतलब तुमको लगता है वो दिस इज कूल, दिस इज एक्चुअली कूल। एंड बहुत मतलब उधर रंजीत सिंह के बारे में पढ़िए आप, इन सब के बारे में जब आप पढ़ना शुरू करते हो तब समझ में आता है कि भाई बड़ा पराक्रम भरा हुआ है, बड़े मतलब जबरदस्त कहानियां हैं, और मतलब वाह यार, फील आ जाती है, फील आ जाती है नीचे। और पीछे एंशिएंट इंडिया में जाओगे तो मौर्यास, गुप्तास, चोलास, इन सब के बारे में इधर पढ़ोगे, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, ये सब जब, तो यू फील दैट कि ब्रो ये तो यही हुआ था, ये बुद्धा जो चले थे ये यही इसी धरती पे चल रहे थे, कहीं और नहीं थे, है ना? तो ये सब चीजों, और मेरा उद्देश्य यही है हिस्ट्री पढ़ के लोगों को पढ़ाना है, ताकि मुझे खुद समझ में आने लगे और मैं कुछ लोगों को समझा सकूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं आई लर्न बेस्ट बाय टीचिंग अदर्स। मैं कुछ लोगों से डिस्कशन कर लूं, बात कर लूं, तो मुझे भी अच्छा समझ में आने लगता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली टू जनरेट मोर क्वेश्चंस। आई थिंक क्वेश्चंस पूछना इंपॉर्टेंट है, और हमारी परंपरा ही आर्ग्यूमेंटेटिव होने की रही है, जैसा मैंने कहा था। तो मेरा ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, विकास सर हैं, जैसे विकास दिव्य कीर्ति, मणिकांत सर है, इन सब से इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये लोग आज ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। मतलब खान सर हो गए, अवध ओझा सर हो गए, ये लोग ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, विच इज अ मिशन ऑफ रेजिंग द लेवल ऑफ डिस्कशंस इन आवर कंट्री, कि वी नीड टू मूव to some better topics. Our electorate needs to become more aware, and that will, like, history can be a great contributor towards that, you know. We should not get duped by petty political means is what also, you know, it can do for us. I think, so maybe a point that I would want to add here, Sachin, I think just sort of coming through our discussion itself, right? Ki I think when you start questioning and when you start looking back in your own life and you start understanding what you actually want and what you're actually capable of, what is your true skill, that gives you a lot of confidence. And I think history does the same thing to you. So when you
when you don't know your own history, you will not have a lot of self-respect for yourself in front of somebody from the Western world. But when you start बिल्कुल. understanding your own history, where you're coming from and how rich it is, then you'll start having more respect for yourself, and you'll be able to stand more confidently. And the India which is which is now and is going to be in the next decade, I think we need to look back in our history, build that confidence so that we can build the nation that we want to. 100%. Uh, yeah, I think, Absolutely spot on. yeah, And you know, and just a little on टॉप ऑफ दैट कि यार एक बार जब आप अपने में प्राइड ढूंढ लेते हो ना, तो आप दूसरों का भी सम्मान करना सीख जाते हो. जैसे अगर आपको yeah, अपनी yeah, लैंग्वेज अच्छे से आ जाए, जैसे मुझे हिंदी अच्छी आती थी, उसके कारण से मुझे इंग्लिश सीखने में बड़ी हेल्प हुई, क्योंकि yeah, लगता था ना यार कि जो मर्म मुझे हिंदी में मिला वही शायद इस लैंग्वेज में भी होगा, इसके लोगों ने yeah, ढूंढा होगा, वही yeah, किसी और लैंग्वेज में, तमिल में होगा, उड़िया में होगा, बंगाली में होगा, हर जगह आपको वो मर्म ढूंढने को मिलेगा. yeah, yeah, है ना? yeah. तो And वो भी एक एंगल है कि जो आप बोले कि हम एक अच्छे, अपना प्राइड हमको पाना ही पाना है और समझना है कि हम भी बड़े महान उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, yeah, और फिर yeah, समझना है कि हाँ ठीक है, दूसरे कल्चर्स भी ऐसा ही सोचते होंगे अपने अपने लिए. yeah, yeah. मतलब कुछ सो चीज़ें मुझे और समझ में आती है जब मैं अपने रिचुअल्स को देखता हूँ, और जब हम किताबें पढ़ते तो हमें लगता है कि सारे रिचुअल्स हमारे बेकार हैं, राइट? कि हमारी जो माता जी हैं इतने सारे व्रत कर रही होती हैं, क्यों कर रही होती हैं? And then when I'm listening to some of the podcasts from the US, I realize कि they are talking about why you should fast for 7 days in a row, the हाँ, advantages of fasting and how fasting is linked to अरे the longevity of life. And I'm like कि एब्सोल्युटली मतलब कितना गलत है हम अपने अनबिलीवेबल. रिचुअल्स के बारे यस, में. करेक्ट. Maybe I think what needs to be done is to be sort of redefine the rituals, and इसके पीछे क्या लॉजिक है, इनको अगर समझाना शुरू करें लोगों को, then I think that will be a good starting point, because काफी rich है हमारे rituals, हमारा culture, बिल्कुल and we definitely need to sort of look deeply behind these things. 100%. 100%. जैसे एक मैं आपको जैसे मैं अभी एक कहीं एक फिलोसोफर कुछ पढ़ रहा था मैं अभी थोड़े दिनों पहले, और वो इतने अच्छे से एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जो 5 स्टार शेफ्स होते हैं, कहते हैं वो लोग क्या करते हैं ना, अपना जो किचन होता है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि उनका ऑर्गेनाइजेशन ही एक घड़ी का काम भी करने लगता है ना? कि तुम अपने इन्वायरमेंट को ऐसा बना लो कि वो तुम्हारा एक्सटेंडेड हैंड या एक्सटेंडेड लिम्ब का काम करने लगे, एक्स्ट्रा Yeah, एडवांटेज देता है वो तुमको. और वो यही की यही एनालॉजी रिलीजन पे अप्लाई करते हैं कि देखो जो रिचुअल्स होते हैं वो तुमको कुछ फंडामेंटल चीजें लाइक डिसिप्लिन, लाइक मोटिवेशन, लाइक गुड हेल्थ, लाइक सेल्फ कंट्रोल, ये सब ऑटोमेटिकली सिखाना शुरू कर देते हैं. तो वो जब तुम कहीं और टर्न कर दो तो वो उसके लिए काम करने लगता है. मान लो तुमने कोई, yeah, तुम मैथमेटिशियन बनना चाहते हो आगे चल के, तो यही जो रिचुअलिस्टिक डिसिप्लिन तुमको सिखाया गया, ये अब तुमको वहां काम आने लगेगा. और देन ही मेक्स अ स्टेटमेंट कि जब रिलीजियस स्ट्रक्चर्स टूटने लगते हैं तभी देयर इज सो मच नीड टू फाइंड मोटिवेशन, फाइंड सेल्फ हेल्प, फाइंड दिस, क्योंकि वो कहीं और से मिल ही नहीं रहा है. yeah, 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 है ना? जैसे आपने जो फास्टिंग बताया, सारे कैलेंडर, सारे रिलीजियस कैलेंडर्स में मिनिमम मैंने सुना है 180 दिन की फास्टिंग होती है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरीकों से. आप कोई भी रिलीजियस कैलेंडर उठा लो, फास्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट. आप yeah, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का उठा लो, आप इस्लामिक कैलेंडर उठा लो, आप हिंदू कैलेंडर उठा लो, आप सारे कैलेंडर जब उठाओगे तो yeah, समझ में आता है कि हाँ यार ये किसी रीजन से बनाए गए थे. ऑफ कोर्स उसमें फिर दकियानुसी बातें जोड़ दी गई, उसमें प्रथाएं जोड़ दी गई, उसमें ऑपरेसिव टेंडेंसीज जोड़ दी गई, वो गड़बड़ है. पर yeah, उसका yeah, जो yeah, एक एलिमेंट है वो ये है कि आपको वो एक ऐसे टाइम पे डायरेक्शन दे देगा जब आपको डायरेक्शन की नीड होगी, और उस डिसिप्लिन से आपको हेल्प हो सकती है. yeah, तो yeah, वो एक जो आप बहुत सही बात बोले, एंड yeah. एंड But it's, पीपल आर वेकिंग अप टू these ideas now totally. yeah, yeah, yeah. But I think again here also I'll say कि I think question everything, read everything, Absolutely. question everything, and 100%. just don't sort of blindly believe in any Yeah, ritual or whatever we are also saying.
think about it, think 100%. deeply about it, and then do whatever is required. It's a pleasure, 100%. Sachin. बिल्कुल Anything else बिल्कुल. you want to add before we close the session today? नहीं यार, बस बहुत बहुत अच्छा लगा विवेक बात करके यार. It's been a long time, and I had never thought that the next time we will talk so elaborately would be in this setting, and I am so glad that this happened, right? Like, it's been a long time, and what a great pleasure, what amazing questions. Thank you for listening to me. I know I just sometimes meander in all the different places, but it was Nee, very very good conversation. I'm one of those students here who just loves Bakar and who loves listening to people. Absolutely. I think that was one primary motivation to say, like, wow, this will be fun. I was always hoping for that. So yeah, 100%. Thanks, Sachin. Hopefully, we'll have more such conversations on this podcast in future. Totally. Thanks again. Totally. Have a good day. Thank you.